discuss Balsi's argument in favor of structural criticism. Balsi's के जो arguments हैं in favor of structural criticism, हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या है. Ferdinand de Saussure was a Swiss linguist whose ideas laid the foundation of structuralism. Saussure's most influential work, Course in General Linguistics, was published posthumously in 1960. This started a movement called structuralism, and this mode of reasoning has been applied in diverse range of fields, including anthropology, sociology, psychology, literary criticism, and architecture. Balsi says that structuralism was the only school of thought that seriously challenges expressive realism and unlike new criticism. बेल्सी ये कहती है कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है ये ओनली स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सीरियसली चैलेंज करता है एक्सप्रेसिव रियलिज्म को और अनलाइक न्यू क्रिटिसिज्म नॉट रॉब प्रायर एंड reader power, it successfully rejected the concept of author as a source of meaning. In order to understand its impact on literary criticism, we should first discuss the concept of meaning in Saussurean literature. Since time of Plato, it was believed that language is merely a system of naming things. The things and concepts existed in world and then language was developed. It simply named these things and concepts. This theory takes language as passive, having no role in formation of concept. और ये theory जो है language को as passive लेती है जिसके ना तो have no role in formation of concept जिसका concept के formation में कोई role नहीं है. Saussure rejects this theory and says that language does not label things which exist independently in the world, but language comes before these things, and it helps to understand this world by differentiating between concepts. Saussure जो है वो इस थ्योरी को जो है रिजेक्ट कर देता है जो कि लैंग्वेज को एज पैसिव लेती है और जिसका कोई रोल नहीं होता इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. तो वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो कोई चीजों को नाम देने का नाम नहीं है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द वर्ल्ड, बट लैंग्वेज जो है comes before these things and help us to understand this world by differentiating world. बल्कि लैंग्वेज जो है वो इन्हीं चीजों के सामने आती है जिनका हम नाम लेते हैं. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस वर्ल्ड और ये हमें हेल्प करती है लैंग्वेज कि हम अंडरस्टैंड करें इस दुनिया को बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन कॉन्सेप्ट्स. फिर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं कॉन्सेप्ट्स के दरमियान. In order to understand this concept, we have to analyze his linguistic system. और in order to understand this concept, इस concept को understand करने के लिए हमें इस linguistic system को analyze करना पड़ता है. Saussure says that language is a system of sign. A sign consists of a signifier and signified. वो कहता है ये language जो है ना system of signs है और एक sign जो है वो consist करता है एक signifier और एक signified को. A signifier is the sound image. एक signifier जो होता है वो एक sound image होता है और written shape, for example, what we speak, the word dog or write it, this would be called a signifier. जो sound image होता है उसको हम signifier कहते हैं. जैसे हमने किसी dog को देखा और हमने बोला dog, बच्चे ने सेब देखा और बच्चा कहता है apple. So apple is the word sound image, so it is the signifier. The signified is the concept associated with the signifier. For example, when we hear the word dog, instantly the image of a four-legged animal come into our mind. तो वो जो image हमारे जहन में आता है हम उसको signified, वो जो concept हमारे जहन में आता है कि जी एक animal जिसकी चार टांगे और वो इस तरीके से बात करता है तो वो हम कहते हैं कि दैट इज द सिग्निफाइड. और साइन क्या है? साइन जो है वो डॉग है कि मैंने एक डॉग को देखा, ठीक है. जैसे और ये बेटा आपका लिंग्विस्टिक्स में आएगा ये कॉन्सेप्ट सारा, व्हाट इज सिग्निफायर, सिग्निफाइड और ये सारा, और ये शॉर्ट को आप दोबारा से पढ़ेंगे. तो द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड आर इनसेपरेबल. तो सिग्निफाइड और सिग्निफायर जो ये इनसेपरेबल है. जब आपको मैं लिंग्विस्टिक्स में ये पढ़ाऊंगी ना तो एक ट्राइंगल बनता है. ट्राइंगल में कुछ यूं होता है कि एक
जो जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगल है ना, उसकी टॉप टिप के ऊपर आप लिखें साइन, राइट साइड पे सिग्निफाइड लिख दें और लेफ्ट साइड पे सिग्निफायर लिख दें, ठीक है। यानी कि ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं कि मैंने एक डॉग को देखा या मैंने एक एप्पल को देखा, ठीक है, दैट इज द साइन। एक साइन है, हर ऑब्जेक्ट जो है ना बेसिकली अगर हम लिंग्विस्टिक टर्म में देखें तो वो एक साइन होती है, और उस साइन को जब हम देखते हैं तो मैं बोलती हूँ एप्पल। ये जो मेरा साउंड इमेज है दैट इज द सिग्निफायर। यानी कि सिग्निफायर कौन है? जो साइन को बताता है कि भाई ये चीज है, तो आई एम द सिग्निफायर। मेरा जो साउंड इमेज है दैट इज द सिग्निफायर। और व्हाट इज सिग्निफाइड? सिग्निफाइड वो जो इमेज मेरे जहन में बना कि भाई वो एक एप्पल है दैट इज रेड इन कलर और वो एक फ्रूट का नेम है, तो वो क्या हो गया? वो सिग्निफाइड हो गया। वो एक इमेज है, वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मेरे जहन में बन रहा है, उसको मैं कहती हूँ दैट इज सिग्निफाइड। और साइन क्या है? साइन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ है, ठीक है। इनफैक्ट दे आर लाइक टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। दो, ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक कॉइन की, एक सिक्के की दो साइड्स हैं। when the one comes into mind instantly the other follows, ठीक है। जैसे ही एक मतलब एक सिक्के की एक साइड हमारे जहन में आती है तो हमारी दूसरी साइड भी उसके जहन में आ रही होती है। so a short example is the concept tree, ठीक है। ये concept of tree भी आप linguistics में दोबारा पढ़ेंगे। and various words for the tree in different languages। अब tree के ही various words हैं जो कि different languages में है। if one speaks English the written or spoken word tree will automatically bring one's mind concept of tree। जब कोई भी इंग्लिश में speaks English, the written spoken word tree will automatically bring in one mind the concept of tree। जब भी मेरे सामने कोई बोलेगा भाई tree, तो मेरे जहन में एक concept of tree आ जाएगा। The meaning of any sound sign is found in associated created between sound and image and the concept। अब ये जो sound image और concept है, साइन क्या है? ट्री इटसेल्फ है जो कि इमेज है, और मैंने ट्री बोला वो उसका साउंड इमेज है, ठीक है, जिसको मैं सिग्निफायर कह रही हूँ। और वो जो कॉन्सेप्ट जो मेरे जहन में बनता है वो क्या है? वो सिग्निफाइड है। Aristotle said that the name of concept or things are logically connected and the name of thing expresses the qualities of that thing। If a particular four-legged animal is called dog, then it means the word dog expresses the qualities of that four-legged animal। वो कहता है कि अगर ये फोर लेग एनिमल जो है उसको, अगर ये फोर लेग एनिमल जो है इसको डॉग कहा जाता है, देन इट मींस द वर्ड डॉग एक्सप्रेसेस द क्वालिटीज ऑफ दैट फोर लेग्ड एनिमल। बोथ आर लॉजिकली कनेक्टेड एंड दिस एनिमल कुड नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय एनी अदर नेम। इस एनिमल को अब हम कोई और नाम नहीं देते। Saussure rejected this concept by saying that the relationship between a signifier and signified, यानी कि वो जो साउंड इमेज है और वो जो कॉन्सेप्ट है वो प्योरली आर्बिट्रेरी है, बिकॉज लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। दैट is it not based upon any logic or reason। He says that in beginning when language was formed somebody named this four-legged animal dog। वो कहता है जब लैंग्वेज बनी थी तो किसी ने इस four-legged animal को dog कह दिया। and other people also started to call it by the same name। later on this became a convention। या अब ये ट्रेडिशन बन गई है कि इस तरह का कोई भी जानवर देखेगा वो उसको डॉग ही कहेगा। एंड द कमिंग जनरेशन आल्सो एक्सेप्टेड इट। और आने वाले दौर ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। Saussure support this argument by saying that if relationship between a signifier and signified was based upon logic, then all the language of the world would have same signifier for this four leg। सिग्निफायर यानी कि वो साउंड इमेज, यानी कि साउंड को अगर देखिए वो कहता है कि अगर तो रिलेशनशिप बिटवीन अ सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो है वो बेस अपॉन होता है लॉजिक के ऊपर, तो तमाम दुनिया की लैंग्वेजेस में डॉग को डॉग ही कहा जाता, उर्दू में फिर कुत्ता क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है। जिस सोसाइटी में उसका जो नाम है डॉग का वो वही बोला जाएगा, उसी लैंग्वेज में बोला जाएगा। तो वो कहता है कि अगर तो ये जो है लैंग्वेज जो है मतलब सॉरी वो ये कहता है कि ये लॉजिक के ऊपर बेस होता ना तो पूरी दुनिया में डॉग को डॉग ही कहा जाता।
यानी कि कोई भी लैंग्वेज होती तो डॉग को डॉग ही कहा जाता, अरबी में कुछ और नहीं कहा जाता, उर्दू में कुछ और नहीं कहा जाता, फारसी में कुछ और नहीं कहा जाता। तो वो ये बात कर रहा है। Saussure also presented a revolutionary idea that the meaning of in a language is not generated because of the relationship between a signifier and signified. Saussure एक प्रेजेंट करता है एक रेवोल्यूशनरी आइडिया को कि मीनिंग जो है उस लैंग्वेज में वो ना तो जनरेट होता बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन अ सिग्निफायर एंड अ सिग्निफाइड. He is of the view that language is a system of differences without positive terms. One signifier in a system has meaning. एक signifier जो होता है एक लैंग्वेज सिस्टम में उसके कुछ मीनिंग होते हैं बिकॉज इट इज नॉट एनी ऑफ अदर सिग्निफायर इन द सिस्टम, क्योंकि वो कोई और साउंड इमेज नहीं होता, ठीक है, उसको कुछ और नहीं बोला जा रहा होता उस सिस्टम में. सिस्टम कौन सा? लैंग्वेज सिस्टम की बात कर रहे हैं हम बेटा, अब लिंग्विस्टिक टर्म्स में बात कर रहे हैं. लिंग्विस्टिक टर्म्स के अंदर वही ऑब्जेक्ट्स, अब देखे ना, मैं आवाज को यहाँ पे साउंड इमेज कह रही हूँ, ठीक है, मैं अगर डॉग बोल रही हूँ मैं कह रही हूँ ये साउंड इमेज है. अगर मैं डॉग देख रही हूँ, मैं एक जो है एनिमल का इमेज देख रही हूँ, मैं उसको साइन कह रही हूँ, ठीक है. और वो जो इमेज मेरे जहन में बन रहा है मैं उसको कॉन्सेप्ट कह रही हूँ, मैं उसको सिग्निफाइड कह रही हूँ. तो दीज आर द लिंग्विस्टिक टर्म्स. तो बेसिकली दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो इन द सेंस दैट साइन जनरेटेड मीनिंग नॉट बाय पॉइंटिंग टू एन एंटिटी इन द वर्ल्ड. तो साइन जनरेट होते हैं, साइन अपने मीनिंग जनरेट करते हैं नॉट बाय पॉइंटिंग टू एन एंटिटी इन द वर्ल्ड, but rather by pointing to other words in the language system, which is not the meaning of sign is thus defined negatively as different from other signs which it is not. अब यहाँ पे वो ये बात करता है कि अगर हम साइन की बात करें तो साइन अपने मीनिंग्स जो है, ऐसा नहीं होता कि वो अपने अपने मीनिंग्स जो है जनरेट करें टू पॉइंट नॉट बाय पॉइंटिंग टू एनी एंटिटी इन द वर्ल्ड, बट रादर हम जब पॉइंट करते हैं टू अदर वर्ड्स इन लैंग्वेज सिस्टम विच इट इज नॉट, द मीनिंग ऑफ साइन इज thus डिफाइंड नेगेटिवली. तो इस वजह से वो जो मीनिंग ऑफ साइन जो है उसको नेगेटिवली डिफाइन किया जाता है एज डिफरेंस फ्रॉम अदर साइंस विच इट इज नॉट, जो कि दूसरे साइंस से डिफरेंट होते हैं. यानी कि डॉग को डॉग ही कहा जाएगा. यानी कि हम हर लैंग्वेज में कोई भी चीज देखते हैं, कोई भी इमेज देखते हैं, फॉर एग्जांपल डॉग ही देखते हैं, तो हम उसी तरह के डॉग को अपनी लैंग्वेज में वही कहेंगे, हम उसको कुछ और नहीं कह देंगे, ठीक है, हम उसको कैट नहीं कह देंगे किसी और लैंग्वेज में जाके. इट वाज इन दिस वे द बाइनरी opposition came to seen as the basic meaning generating unit in language. A binary opposition is a set of antonyms like night day. ठीक है, एक बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? जैसे कैट का डॉग होगा, इज अ सेट ऑफ एंटोनियम्स. ऑपोजिट का ऑपोजिशन सेट ऑफ एंटोनियम्स होता है, सिनोनिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, ठीक है. वो कहता है कि सिनोनिम्स वर्ड्स मीनिंग को कहते हैं, एंटोनिम्स वर्ड्स ऑपोजिट को कहते हैं, लाइक नाइट डे, गुड एविल, मेल फीमेल. Signs were understood as having a significant other, an antonym against which any particular sign could define its meaning negatively. वो कहता है कि साइंस जो है उनको अंडरस्टूड, वो अंडरस्टूड होते हैं हैविंग अ सिग्निफिकेंट अदर एंड एंटोनिम एंगेज. देखिए, अगर आपको एक चीज समझ नहीं आ रही होती तो हम फौरन से देखते हैं इसका ऑपोजिट क्या है. जैसे वो चौसर का एक क्वेश्चन आया था ना कि सेक्युलर कैरेक्टर्स इन चौसर, और अभी मैं डॉक्टर फॉस्टर्स पढ़ा रही थी स्टूडेंट्स को, तो वहां पे आया कि उसका जो सेक्युलर नॉलेज था वो उसकी डैमिनेशन का बायस बना. तो स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे मैम ये सेक्युलर क्या होता है? मैंने कहा बेटा सेक्युलर का ऑपोजिट क्या होता है? रिलीजियस. ठीक है, तो रिलीजियस का ऑपोजिट क्या हुआ? सेक्युलर हो गया. तो देन क्या होता है कि जब हमें किसी चीज का बाज़ औक़ात मीनिंग नहीं समझ आ रहा होता तो हम उसका ऑपोजिट या उसका नेगेटिव टर्म उसके सामने रख देते हैं, तो हमें उसका मीनिंग समझ आने लग जाता है. तो इस वजह से हर लैंग्वेज में सिनोनिम्स भी होते हैं और एंटोनिम्स भी होते हैं. सो द मीनिंग ऑफ द साइन नाइट इज डिफाइंड पर्टिकुलरली बाय इट्स नेगेटिव रिलेशन टू द साइन डे. तो इस वजह से बेटा नाइट का जो साइन होता है, जैसे मैं कहती हूँ ना फॉयल कैरेक्टर्स होते हैं, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक पॉजिटिव कैरेक्टर होता है. वो जो फॉयल कैरेक्टर होते हैं वो दूसरे के कैरेक्टर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट कर रहे होते हैं, कैरेक्टर को बहुत ज्यादा हाईलाइट, इवल बहुत ज्यादा इवल लगने लग जाता है और जो अच्छा होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग जाता है. इसी तरीके से वो कहता है कि नाइट भी पर्टिकुलरली
उसका वो जो नेगेटिव रिलेशन है ना उसके साइन डे के साथ, इस वजह से उसका मीनिंग जो है वो और भी ज्यादा एनहांस हो जाता है. इज नॉट डे, फीमेल इज नॉट मेल, इवल इज नॉट गुड. According to Shorts, every concept in language is based upon binary opposition. ये binary opposition यानी कि words opposite उसको कहा जा रहा है, और linguistic terms में हम इसको binary opposition कहते हैं. पहले हमने क्या देखा concepts Shorts में, sign, signifier and signified. Now what is the second concept? कि वो कहता है ये जो साइंस हैं वो अंडर नहीं, दूसरी बात उसने क्या की कि ये जो साइंस है डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट बोले जाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो आर्बिट्रेरी होती है. यानी कि जिस एरिया की जैसी जबान है, जिस मुल्क की वैसी जबान है, वो डॉग को उसी जबान में बोलेंगे. उर्दू में हम उसको कुत्ता ही कहेंगे. फिर थर्ड उसने पॉइंट बात की कि जो इमेजेस होते हैं या जो ये जो अरिस्टोटल ने कहा कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ मीनिंग्स का नाम है. यानी कि एक आपने इमेज देखा और आपने उस ऑब्जेक्ट को नेम दे दिया, लेकिन इसको साशोर ने निगेट किया. उसने कहा नहीं, लैंग्वेज कॉन्सेप्ट्स का नाम है. अब उन कॉन्सेप्ट्स में उसने बाइनरी कॉन्सेप्ट्स की बात की है, बाइनरी ऑपोजिशन की बात की है. पहले उसने कॉन्सेप्ट की बात की, उसके बाद उसने ऑपोजिशन की बात की, बाइनरी ऑपोजिशन की बात की कि हम एक कॉन्सेप्ट को कैसे जानते हैं जब उसका कोई ऑपोजिट उसके सामने होता है. हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, ऑपोजिट हो गए ना. सिस्टर एंड ब्रदर ऑपोजिट हो गए. तो दैट्स वाई बाइनरी ऑपोजिशन की वजह से वो हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम समझ पाते हैं और फिर हम उस कॉन्सेप्ट को एक नेम देते हैं. उसके बाद देखिएगा लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू सशोर इज द एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये अकॉर्डिंग टू साशोर एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है. दिस इंक्लूड्स द साउंड सिस्टम, वोकैबुलरी एंड ग्रामर ऑफ लैंग्वेज. इसके अंदर साउंड सिस्टम होता है, वोकैबुलरी होती है और ग्रामर होती है. इन द बिगनिंग व्हेन लैंग्वेज वाज फॉर्म्ड सच अ सिस्टम डिड नॉट एग्जिस्ट. जब शुरू में लैंग्वेज जब बनी थी इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था. आफ्टर सम टाइम सम पीपल स्टडीड द वे लैंग्वेज वाज स्पोकन बाय द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी एंड ड्राइव्ड रूल्स फ्रॉम इट. दीस रूल्स बिकेम द लैंग्वा ऑफ लैंग्वेज. और फिर क्या हुआ, ये रूल्स जो है इनको लैंग्वा कहा जाता है, लैंग्वेज के रूल्स को. Before these rules, the individuals were free to speak without paying attention to any rules. But after the rules were set, they became the tradition. Now, coming generation must follow these rules. It is the ideal form of language. The language was derived from the speech of individuals, but after it came into existence, it started ruling them. And now they cannot deviate from it. Language, therefore, is a social phenomena. It is concrete and we can study it. The books of grammar of a language contain its language. हर बुक ऑफ ग्रामर जो है उसके लैंग्वेज के रूल्स होते हैं. द रूल्स विच मेक बी फॉलोड बाय ऑल द लर्नर्स ऑफ दैट लैंग्वेज. फिर उसके बाद पैरोल है, लैंग्वा एंड पैरोल. बेटा ये आपके लिंग्विस्टिक्स में भी आएगा, गौर से पढ़िएगा. वहां पे आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन, वो कहते हैं चलें जी डिफरेंशिएट करें लैंग्वा एंड पैरोल में. अब देखें लैंग्वा किसे कहते हैं, लैंग्वेज रूल्स को कहते हैं. ठीक है, अब what is parole? Parole is actual use of language by people in speech or writing. वो हम जो है रूल्स ऑफ लैंग्वेज की बात कर रहे थे. अब हम पैरोल क्या होता है, वो एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज बाय पीपल इन स्पीच और राइटिंग. एक्चुअल यूज जो लोग स्पीच और राइटिंग में करते हैं ना उसको कहते हैं. इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू लर्न अ लैंग्वेज ही मस्ट मास्टर द लैंग्वा फर्स्ट. उसको सबसे पहले लैंग्वेज रूल्स पढ़ने पड़ते हैं. नाउ ही कैन स्पीक और राइट द लैंग्वेज यूजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज. पहले तो वो रूल्स पढ़ेगा, लेकिन अब क्या है, उसने उसको स्पीक भी करना और उसने उसको राइट भी करना यूजिंग रूल्स ऑफ लैंग्वेज. एंड दिस स्पीच ऑफ राइटिंग कुड बी कॉल्ड पैरोल. और ये रूल्स ऑफ लैंग्वा जो है, सॉरी ये स्पीच और राइटिंग जो है, इसको एक्चुअली पहले हमने रूल ऑफ लैंग्वेज की बात की, अब हम स्पीच और राइटिंग की बात करते हैं, उसको पैरोल कहा जाता है. लैंग्वा रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ रूल्स एंड कन्वेंशंस व्हिच इज डिपेंडेंट ऑफ एंड प्री एग्जिस्ट इंडिविजुअल यूजर्स. लैंग्वा जो है एक सिस्टम ऑफ रूल्स है जो कि प्री एग्जिस्ट करता है, ट्रेडिशन के मुताबिक हम बोलते हैं. ठीक है, पैरोल जो है रेफर करता है टू इट्स यूज इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस. हम उसका जो यूज करते हैं उस जबान का थ्रू स्पीच एंड थ्रू राइटिंग. इन पर्टिकुलर इंस्टेंसेस हम उसको पैरोल कहते हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन अ स्टूडेंट स्टडीज द रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन अ बुक ऑफ ग्रामर,
इट वुड बी अ लैंग्वा। ठीक है, हम वो स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं ना, वो क्या है, टेंसेस का, वो लैंग्वा है। बट आफ्टर लर्निंग दीज रूल व्हेन ही वुड यूज दीज मेकिंग इन सेंटेंस ऑफ हिज ओन, अब मैं खुद से बोल रही हूँ, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, दैट इज पैरोल। ठीक है, दैट वुड बी दिस पैरोल। हाउ दीज लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म, अब ये लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म से कैसे जो है इंटर कनेक्टेड है। According to Saussure, language and social organization are interdependent. One cannot exist without other. Language come into being at the same time as society. At the time of its creation, the sign was arbitrary, but after it became a system. Now it is not arbitrary at all. वो कहता है जब लैंग्वेज बनी ना उस वक्त वो आर्बिट्रेरी थी, लेकिन अब जो है ये आर्बिट्रेरी नहीं रही। मीनिंग इज पब्लिक एंड कन्वेंशनल, अब इसके जो मीनिंग्स हैं वो पब्लिक भी हैं और ट्रेडिशनल भी हैं। द रिजल्ट नॉट ऑफ इंडिविजुअल इंटेंशन पैरोल and of inter-individual understanding lengua. In other words, meaning is socially constructed. A society promotes its concepts, ideas and beliefs through its language. एक society अपनी language के through ही ये सारी बातें बताती है। Belsey calls these ideas, concepts and beliefs ideology. अब वो इसको ideology कहती है. This ideology, like lingua, comes before the individual and is more powerful. When an individual comes into the world and learns the language of society in which he lives, he also absorbs the ideology of the society. उस society की जो ideology है, यानी कि उसके concepts, beliefs, ideas जो हैं वो उसकी बात करती है. When he speaks or writes something, it is his parole. और वो जब कुछ लिखता है तो वो जो है उसका पैरोल होता है या बोलता है. द पैरोल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द लैंग्वेज. स्ट्रक्चरलिज्म, और ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है बेटा ये भी आपकी लिंग्विस्टिक्स में आनी है अभी दोबारा से. स्ट्रक्चरलिज्म, द लिटरेरी थियोरी based upon the theories of Saussure, believes that writer's parole cannot be free of lingua. When he writes, he does not write his own concept, but he simply expresses the ideology of society in which he is born. ठीक है, जब वो राइट करता है ना अपने ओन कॉन्सेप्ट, तो वो सिंपली एक्सप्रेस करता अपनी सोसाइटी की आइडियोलॉजी को जिसके अंदर वो पैदा हुआ होता है. इस लिहाज से अगर देखा जाए, अच्छा, in this way structuralism is the only school of thought that has successfully challenged expressive realism. अब इसको देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है ओनली स्कूल ऑफ थॉट है जो कि सक्सेसफुली चैलेंज करता है एक्सप्रेसिव रियलिज्म को. स्ट्रक्चर्स एंड पैटर्न्स ऑफ सोसाइटी कम बिफोर द इंडिविजुअल. ये स्ट्रक्चर्स और पैटर्न ऑफ सोसाइटी है जो कि एक इंडिविजुअल के सामने आते हैं. A society always wants to guard these structures and patterns. एक सोसाइटी हमेशा जो है इन स्ट्रक्चर्स और पैटर्न की हिफाजत करती है. This can only be done through the propagation of ideological structure. अब ये जो हमारे बिलीव्स होते हैं किसी भी नेशन के, ये उसके ऊपर बेस करता है. This propagation is done through language. When a child learns the language of society, unconsciously he also learns the concept which the society wants to learn him. जब हम एक बच्चा एक सोसाइटी के अंदर पैदा होता है तो ऑटोमेटिकली हमें पता है ना हम पाकिस्तानी हैं, हम आज़ाद हुए थे, हमारी एक आइडियोलॉजी है, तो इनडायरेक्टली हम सारी चीज़ें वैसे ही सीख जाते हैं. He considers himself free, but actually he thinks what the social structure wants him to think. If he is a writer, he is writing those things which are valued by his society. He is not free at all. This is the reason but we cannot take an individual writer as the source of meaning. इस वजह से हम एक individual writer को source of meaning नहीं कह सकते. While interpreting any literary text, we should keep in view the literature is also means to propagate the ideology of society. और हम जो है हमें ये जहन में रखना चाहिए कि लिटरेचर एक्चुअली वो मीन्स है, वो प्रोपगेट करती है आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक सोसाइटी के जो बिलीव्स होते हैं उसको वो जो है प्रोपगेट करती है. लिटरेचर डज नॉट रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड ऑफ और रियलिटी. लिटरेचर जो है वो सिर्फ वर्ल्ड और रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करती. इट इज रिटन इन लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इटसेल्फ इज बेस्ड अपॉन द आइडियोलॉजी. देयरफॉर लिटरेचर आल्सो रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी. इसलिए लिटरेचर जो है रिफ्लेक्ट करती है आइडियोलॉजी को. लैंग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टू थिंकिंग. ठीक है, लैंग्वेज जो है वो क्लोजली रिलेट करती है थिंकिंग से. थॉट इज इम्पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज. थॉट जो है इम्पॉसिबल है विदाउट लैंग्वेज. The laws of thought reflect the system of difference inscribed in the signifying system. और ये जो laws of thought है वो reflect करते हैं system of difference
जो कि सिग्निफाइंग सिस्टम में इंस्क्राइब्ड होते हैं, यानी कि ये जो लॉज ऑफ थॉट है वो सिस्टम ऑफ डिफरेंस को शो करते हैं, जो कि एक सिग्निफाइंग सिस्टम में जो है वो इंस्क्राइब्ड हुए होते हैं, यानी कि एक नेशन के अंदर दबे हुए होते हैं उस सिस्टम के अंदर। द वे आवर माइंड क्लासिफाइज different things and put them in different categories to understand them is also the result of language. Author also produce meaning out of available system of differences. The empiricist idealist theory takes language as system of nomen, nomenclature because it existence proceeds our understanding of world. Words seems to be symbols of things because things are inconceivable outside the system of differences. अब यहाँ पे वो कहता है ये जो words हैं वो symbols होते हैं for things, क्योंकि चीजें जो होती हैं inconceivable होती हैं outside the system of differences. These things also seem to be represented in the mind as ideology. और ये जो है जो चीजें होती हैं जो कि सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस पे बेस करती हैं, बिलीव्स डिफरेंस होते हैं, ठीक है, इमेजेस डिफरेंट हो जाते हैं, तो ये जो है प्रेजेंट करती हैं इन द माइंड एज आइडियोलॉजी विदाउट रियलाइजिंग द फैक्ट दैट दे आर रिफ्लेक्शन ऑफ सिंबॉलिक ऑर्डर. This also explains why common sense reject new discourses, as new discourses bring new concepts which are unfamiliar to common sense. और ये भी एक्सप्लेन करता है कि क्यों कॉमन सेंस जो है रिजेक्ट करती है न्यू डिस्कोर्सेस को, और न्यू डिस्कोर्स जो है वो न्यू कॉन्सेप्ट्स लेके आते हैं विच आर अनफैमिलियर टू कॉमन सेंस, जो कि अनफैमिलियर होते हैं टू कॉमन सेंस. टू चैलेंज कॉमन सेंस इज टू चैलेंज द डिस्कोर्स ऑफ कॉमन सेंस. ठीक है, अगर आप चैलेंज कर देते हैं कॉमन सेंस को तो आप डिस्कोर्स ऑफ कॉमन सेंस को भी चैलेंज कर देते हैं. This post-Arshorian approach proves that expressive realism as a critical theory no longer hold any importance. The claim of this theory that literature reflects the world is false. और ये जो क्लेम है इस थियोरी का कि लिटरेचर जो है वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है, ये फॉल्स है. इफ बाय वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी एक्सपीरियंस, तो अगर हम दुनिया से ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो वर्ल्ड हम एक्सपीरियंस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल द वर्ल्ड differentiated by the language, then the claim that realism reflects the world means the realism reflects the world constructed in language. वो यहाँ पे कहता है कि अगर वो दुनिया जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, द वर्ल्ड वी अंडरस्टैंड, और एक ऐसी दुनिया जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं, एक दुनिया जो कि हम अंडरस्टैंड करते हैं, एक वो दुनिया जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं. द वर्ल्ड डिफरेंशिएटेड बाय लैंग्वेज, ठीक है, और दुनिया जो कि डिफरेंशिएट कर जाती है अपनी लैंग्वेज में, तो ये क्लेम कि रियलिज्म जो है वो वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करती है, दैट रियलिज्म रिफ्लेक्ट द वर्ल्ड कंस्ट्रक्टेड इन लैंग्वेज. तो इसका मतलब ये है कि रियलिज्म उस दुनिया को रिफ्लेक्ट करती है जो कि कंस्ट्रक्ट हो चुकी है लैंग्वेज में, उस मतलब ट्रेडिशन के अंदर, उसके आइडियोलॉजी में, उसके बिलीव्स में, ideas में. Literature tells us about concept through system of science, and this system of science is not based upon its relationship to the world. अब वो कहता है एट द एंड कि ये जो लिटरेचर जो है वो हमें क्या बताती है, वो हमें कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती है थ्रू अ सिस्टम ऑफ साइंस. और वही जो सिस्टम ऑफ साइंस होती है, यानी कि मैंने एक डॉग को देखा, एक साउंड इमेज प्रोड्यूस हुआ, उसका मैं सिग्निफायर कह रही हूँ, और एक कॉन्सेप्ट जो मेरे माइंड में बना वो क्या है, वो सिग्निफाइड है. एंड दिस सिस्टम ऑफ साइंस इज नॉट बेस्ड अपॉन इट्स रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड. अब वो कहता है कि ये जो है ना जो सिस्टम है, यानी कि साइंस का, साइंस सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड का, इसका ये बेस नहीं करता रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड बट विद ईच अदर. ये हमारी कॉमन सेंस के साथ वो कहता है वो करता है, ये हमारी वर्ल्ड के साथ नहीं. हमारी कॉमन सेंस हम क्या परसीव करते हैं, क्या एक्सपीरियंस करते हैं, ये उस पर बेस करता है. In this way, literature only reflect the order inscribed in particular discourses. इस वजह से literature सिर्फ उस order को reflect करता है जो कि inscribed होता है एक particular discourse में, and not the nature of the world. This is the reason that realism seems too familiar, because it only tells the thing we already know through ideology. और यही रीजन है कि रियलिज्म जो है वो बहुत ज्यादा फैमिलियर लगती है, क्योंकि ये वो चीजें बताती है जो हम ऑलरेडी अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू जानते होते हैं. ऑथर इज नॉट द अथॉरिटी, हिज थॉट्स आर आल्सो डिपेंडेंट अपॉन लैंग्वेज. ऑथर जो है वो जो है
उस सिर्फ अथॉरिटी नहीं होता, बल्कि उसकी जो सोच होती है वो भी डिपेंडेंट होती है लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, दैट इज द योर थर्ड क्वेश्चन। आज 3 क्वेश्चन हो गए हैं क्लास। मजबूरी